me to meet you people. As far as my introduction is concerned, he might have told you I'm a teacher of DB Public School, and I can see a few faces from DB here also. So, children, what I mean to tell you is that probably 1 year back, this Asposdi, who has been my student also, he has been a product of DB Public School, came to me and he was talking about the beginning of this project. He said, I'm going to start an economics coaching classes here in Bodhiari. These are my plans, these are my views, this is what I want to deliver to the students, because this is going to be something new. So frankly speaking, I was unaware of the fact that what he was going to do. But the way he has achieved the success and the way he has remarkably transformed his dream into reality is something amazing. And I have come here to tell you one thing, that you people are very lucky to have got such kind of teacher who is not only young, dynamic, but a visionary man. Visionary man means he has got the dream to do something extra that the modern students do not prefer to do. हम जो करियर प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं आज के जमाने में, वो पीटर ट्रैक उसको बोलते हैं लकीर का फकीर होता है। सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, और जब 10 साल के बाद आप जॉब प्रोफेशन में जाते हैं तो पता चलता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो आप पढ़ चुके हैं वो मार्केट में रिक्वायरमेंट उसका नहीं। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो बहुत विजन के साथ पढ़ते हैं, वो 10 साल बाद किसका जरूरत है उसको पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स, you can talk about any professional sector, whether you want to be an IAS officer, or you want to be the state public servant, or you want to go into the banking sector, you want to be the government servant. In whichever profession you want to be, economics the sine qua non. Sine qua non means indispensable, unavoidable. जिसके बगैर काम नहीं चलेगा. And the whole world is going to appoint a large number of economists. I can tell you, you will remember this fact after 10 years. Nobody probably will tell you that the importance of economics is going to increase all of a sudden after 10 years. क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं आ जाएंगी कि उसको सॉल्व सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, और वो कौन कर सकता है? इकोनॉमिस्ट कर सकते हैं। What Amartya Sen said 50 years back, nobody could understand that. People in India were laughing at least. I can tell you. 15 साल पहले जो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने जो किताब लिखी, वेस्टर्न वर्ल्ड ने समझ लिया, भारत में किसी ने नहीं समझा, और आज हम उनके सिद्धांतों पर चलना शुरू कर चुके हैं। That man was the visionary man. He foresaw मतलब उसे दूर से ही देख लिया कि ये होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा ब्रॉड स्कोप होगा आज से 10 साल के बाद कि जो डिमांड सप्लाई थ्योरी सर आपको कभी बताते होंगे, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी चीज का यदि डिमांड अचानक बढ़ जाए और सप्लाई घट जाए तो दाम क्या होता है? बढ़ जाता है। टमाटर या प्याज का दाम पर क्यों बढ़ जाता है? मार्केट में सप्लाई नहीं है और डिमांड बढ़ गया तो दाम बढ़ जाएगा। और उल्टा भी होता है, एडवर्स भी होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो जाए, दाम घट जाएगा। तो इंजीनियर्स का दाम क्यों घट? 10,000 में 15,000 इंजीनियर्स क्यों काम कर रहे हैं? Just because of the fact that a large number of engineers are there in the market and the requirement is very less. We need only 50,000 engineers in the country right now, and we produce 50 lakh engineers per annum. 50 lakh engineers per annum. India needs only 50,000 engineers. So remaining 40 lakh and 50,000 engineers have to resort to taking other professions. उनको दूसरा काम करना पड़ जा रहा है। वो फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं, वो किसी और जॉब में, वो बैंकिंग में चले जाते हैं। बट इकोनॉमिक्स में उल्टा होने वाला है 10 साल के बाद, बिकॉज वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर रीडिंग इकोनॉमिक्स। आफ्टर 10 years India will have 1 lakh economists. India will suddenly need 5 lakh economists. So what is going to happen? When you apply for a profession, for a job, the vacancy is 5, the students is only 1 or 2 or 3. In that case, you will have a price hike. Price hike in the sense you will have a salary hike. Salary का hike क्यों हो जाता है? क्यों आज एक CEO, चाहे वो सत्या नाडेला हो या सुंदर पिचाई हो, इंदिरा नूई हो, इस तरह के जो CEOs हैं, अभी सुंदर पिचाई यदि कहें कि मुझे गूगल छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में जाना है, क्या लगता है आपको? कितने ऑफर्स उनको आ जाएंगे?
दुनिया की सारी मल्टीनेशनल कंपनी उनको बुला रही है, ज्यादा तो एक ही है। और गूगल को पता है ये चीज कि सुंदर पिचाई वो चीज बन गया है कि इसको दुनिया का कोई भी कंपनी हायर करेगा। उसने उसका बैरियर खत्म कर दिया, एग्जिट बैरियर खत्म कर दिया सुंदर पिचाई का। कैसे एग्जिट बैरियर खत्म कर दिया? सेकंड हाईएस्ट पेड सीईओ इन द वर्ल्ड इज सत्या नाडेला, हु गेट्स 300 करोड़ रुपीस पर एनम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, and the first highest CEO in the world is Sundar Pichai, who is getting 1500 crore rupees per annum. 1500 करोड़ रुपया सुंदर पिचाई को गूगल देता है। और जो सुंदर पिचाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर में वो सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट को 300 करोड़ देता है। अब बताओ सुंदर पिचाई को दुनिया में कौन रखे? क्योंकि 1500 करोड़ का जॉब छोड़ के 300 करोड़ में तो नहीं जाएगा। और सत्या नाडेला को यदि वो 300 करोड़ देना तो माइक्रोसॉफ्ट का औकात ही नहीं है कि 1600 करोड़ दे दे। सुंदर पिचाई 1500 छोड़ के 1600 पे आएगा। एग्जिट बैरियर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऐसा प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं है। सुंदर पिचाई जैसा प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं है। वो क्या है एक्चुअली? इकोनॉमिस्ट को, वो इकोनॉमिक्स को समझना आने वाले समय में क्या होगा, क्या हो सकता है आने वाले समय। एक बहुत पॉपुलर स्टोरी यू माइट हैव हर्ड अबाउट सुंदर पिचाई दैट when he got his job in Google, he was living in America. His wife arranged a Thanksgiving party. Thanksgiving party होता है कि मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सबके आशीर्वाद से मेरे पति की नौकरी लग गई, आप सब आइए। एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने पार्टी अरेंज की है। So time was 8 PM. अब अमेरिका में 8 PM मतलब 8, इंडिया के लोगों ने 8 बजे टाइम दिया और 8:45 में पहुंचे और राइट टाइम अपने आप को मार रहे, वहाँ तो नहीं था। 8 मतलब 8. सुंदर पिचाई was driving back from his office to restaurant. But in the meantime, he lost his way. रास्ता भटक गए। अब रास्ता भटक गए, कैलिफोर्निया में इस गली से उस गली, इस गली से उस गली। He reached that restaurant at 10 PM. 10 बजे पहुंचे। The party was over. The wife also ate, went back home. सुंदर पिचाई वापस गए। वाइफ ने जबरदस्त बनाई तो चप्पल से पीटा नहीं, तब उनको खूब फटकार लगाई। Because of you, I had to get a sorry figure. All my guests were waiting for you. You did come. I had to take dinner alone. खूब सुनाया। आमतौर पे ये किसी के साथ भी होता तो वो भूल जाते। सुंदर पिचाई started thinking what to do. I lost my way. There can be millions and millions of people in the world who might have lost their ways because of me, like me. लाखों लोग रास्ता भटक जाते होंगे, क्या करना चाहिए मुझे? Next day he went to the office, called all his professionals, सारे जूनियर्स को बुलाया, सब इंजीनियर्स बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन दो दुनिया में कोई रास्ता न मिले। और वहां से उन्होंने काम करना शुरू किया। 2005 में उन्होंने गूगल मैप लॉन्च किया। और आज गूगल मैप क्या है? आशुतोष सर का कोचिंग भी दिखा देगा। आशुतोष सर का कोचिंग भी गूगल मैप दिखा देगा। इसको कहते हैं विजन। ये है सुंदर पिचाई कि कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ है, गांव की गली से निकलने के कितने रास्ते हैं, इस रास्ते से मत जाइए। दिल्ली में रोड गूगल मैप का लोग बिजनेस से इस्तेमाल करते हैं। शुड आई फॉलो दिस वे? गूगल डू नॉट फॉलो दिस वे, यू कैन फेस हैवी ट्रैफिक जैम देयर। आवाज आता है गूगल का, यू गॉट इट, डू नॉट फेस दैट, फॉलो दैट वे, यू कैन फेस हैवी ट्रैफिक जैम, फॉलो दिस वे। यहाँ पहुंचाया। इस तरह की बिजनेस की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले 10 वर्षों में। एंड यू आर गोइंग टू बी दैट लॉट ऑफ पीपल। आप वो लॉट बनेंगे जब आपकी आवश्यकता जितनी होगी उतने लोगों की संख्या बहुत कम होगी। And that is why I am telling you, I am congratulating you for 2 reasons. Number 1, you are very lucky to choose this profession. Whether you are doing your graduation or master graduation or you are in commerce sector or account sector, you are reading economics. That is number 1. I am congratulating you that you have chosen a very bright profession. लोग आपको साइंस नहीं होगा, अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा होगा, रिजल्ट खराब हो गया होगा। मतलब टेकिंग रिजॉर्ट टू आर्ट्स और टेकिंग रिजॉर्ट टू कॉमर्स का सिंपल मतलब हमारे देश के लोग समझते हैं कि इसका मैथ खराब होगा, साइंस खराब होगा, रिजल्ट खराब हो गया होगा, अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा, इसीलिए आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। किसी मारवाड़ी को आपने साइंस पढ़ते देखा? किसी मारवाड़ी को आपने अपने बच्चों को पढ़ाते देखा कि डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा? नहीं बनेगा। उसका बेटा ठेला लगा लेगा लेकिन डॉक्टर नहीं बनेगा। Why? Because they understand the importance of business. They understand the importance of economics. क्योंकि जॉब का एक बड़ा डिमेरिट है, जान लीजिए। यदि आप में से किसी के पिताजी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में,
तो इसका बड़ा डिमेरिट क्या है? योर फादर हैड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट दैट जॉब। बहुत मेहनत करके आपके पिताजी ने वो जॉब प्राप्त की है, भले ही कंपटीशन से लिया हो, कंपास से लिया हो, दौड़ धूप के लिया हो, घूस देकर लिया हो, बहुत मेहनत करके लिया, उनको जॉब मिल गई, लेकिन डिमेरिट ये उनका बेटा बेटी फिर बेरोजगार। अब उतना ही मेहनत अब आपको करना है, बिजनेस में नहीं होता। श्यामती प्रसाद ज्वेलर्स के बेटे को नहीं सोचना है मुझे कौन सा प्रोफेशन में जाना है, सोचना है क्या? नहीं सोचना। किसी बड़े होटल के मालिक को नहीं सोचना मेरे बेटे को कौन से प्रोफेशन में जाना है। ये हमको और आपको सोचना है। ये स्लेव मेंटालिटी किसको बोलते हैं? गुलामों जैसी सोच। साउथ इंडिया में, गुजरात में, nobody is a job seeker, everybody is a job giver। गुजराती को इतने पॉपुलर पूरी दुनिया में, कोई जॉब नहीं करता, कोई जॉब ही नहीं करता, सब जॉब देता है। They all are job givers, they are not job seekers। और बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? हर किसी को क्या चाहिए? जॉब ही चाहिए। आप जॉब भी यदि ले, आप जॉब लेने वाला आपके फैमिली का लास्ट जनरेशन अपनी फैमिली का आप जॉब लें। अपने बच्चों को फिर जॉब नहीं लेने देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ कर देंगे आप। माय चाइल्ड और माय चिल्ड्रन विल नॉट टेक द ट्रिप्स ऑफ द ट्रेन्स। यहाँ से फॉर्म भर दिया, आरआरबी भुवनेश्वर चले गए, पूरी में वहाँ रेलवे स्टेशन पे बिछा के सोए हुए हैं, पुलिस आया, 4 लाख मारा, लाठी खाया, महाराष्ट्र में गए, राज ठाकरे का पार्टी पीट रहा है बिहारी को। और नहीं हो रहा है? Yes, sir. Why? Because we want to get jobs. Why can't we create jobs? And you can create jobs only when you learn what? Economics. Because to understand the importance of market, you need to learn economics. So economics पढ़ रहे हैं, I congratulate you because you have chosen this profession, and I congratulate you for the second time that you have chosen this teacher. क्योंकि he had got plenty of options. He was getting his education in Delhi University, he could have stayed there. मैंने इनको कहा आप मोतिहारी में क्यों पढ़ाना चाहते हो? यदि पढ़ाना ही चाहते हो तो दिल्ली में पढ़ो। तो नहीं सर, मुझे मोतिहारी में पढ़ाना। So whatever might be the vision, वो तो उनका vision है, लेकिन you are lucky to have it here। उनको यहाँ, आपको यहाँ वो मिल गया। अधिकांश काफी लोग ऊपर की ओर भागते हैं, नीचे आकर नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आशुतोष सर has decided to stay back in Motihari, teaching you guys, giving you all the feedbacks, important case studies समझते हैं ना, बड़े-बड़े लोगों की case study। क्यों सत्या नाडेला यहाँ पहुँच गया? माइक्रोसॉफ्ट को बैन कर दिया अफ्रीकन कंट्रीज ने, माइक्रोसॉफ्ट को बैन कर दिया युगांडा ने, घाना ने, नाइजीरिया ने, सूडान ने। अब सीईओ, दूसरा सीईओ होता था अपने जूनियर्स को भेजता, चले जाओ युगांडा, जाओ वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करो, क्या दिक्कत है भाई, क्यों आपने बैन कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को वहाँ पे? लेकिन सत्या नाडेला didn't do so, rather he himself went there। और जब वो युगांडा पहुंचा, जैसे उसकी फ्लाइट वहाँ पे युगांडा में लैंड की, he was at the gun point। तो आतंकवादियों का देश है भाई, पूरा घेर लिया उसको। And Satya Nadella not only convinced the terrorists, met the prime minister of Ghana and Sudan and Uganda, and convinced them in such a way that Microsoft is now a leading company there। तो वो वैल्यूज आपको जानना है, केस स्टडी करना है, कैसे लोगों ने आगे बढ़ाया, गूगल लेंस कैसे आया, बाकी कंपनियां कैसे ग्रो कर गई, कौन कंपनी डूब गया, कौन सा कंपनी ऊपर आ गया, उसके पीछे कौन सी स्टोरीज हैं, कौन सी कहानियां हैं, ये सब आप इकोनॉमिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे। और आने वाले 10 वर्षों में आई कैन टेल यू विद ग्रेट कन्विक्शन, आपको जॉब की कमी नहीं होगी इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, सिर्फ इकोनॉमिक्स से पढ़ लेने से, नोट 5 नोट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसमें नॉलेज भी होना चाहिए। जीडीपी क्या है मैं आपको बता सकता हूँ कि even teachers who have been teaching economics in the schools do not know better what is GDP। तो आपको यदि GDP का नॉलेज है, आपको GNP GDP का फर्क पता है, आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आपको पता है कि कैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में बूम आना है समय के साथ, कौन सी सेक्टर खत्म हो जाने वाली है, कौन सा सेक्टर ज्यादा जॉब क्रिएशन करने वाला है। सर्विस सेक्टर को कौन वैल्यू देने वाला था 25 साल पहले? आप केस स्टडी करके देख लीजिए। और आज सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन कहाँ पे है? सर्विस सेक्टर में। और पूरी दुनिया चाह रही है सर्विस सेक्टर मेरा ग्रो करे।
सर्विस सेक्टर ग्रो करे, क्यों जा रहा है? एक नया प्रोफेशन क्रिएट हो जाएगा आपका। एवरी कंपनी विल हैव एटलीस्ट 1 or 2 इकोनॉमिस्ट। हर कंपनी को चाहिए। आज के दिन भारत में 50 लाख MSME, मिनिमम मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है वो काम कर 50 लाख। और यदि हर कंपनी को एक ही इकोनॉमिस्ट की आवश्यकता हो तो आई कैन टेल यू भारत में 50 लाख इकोनॉमिस्ट नहीं है। आज के 50 लाख इकोनॉमिस्ट नहीं है। You are going to fill that lot, to fill that slot. आप वो लॉट है जो स्लॉट को फिल करने के प्रस्ताव। खूब मन लगा के पढ़िए, इकोनॉमिक्स पे घुस जाइए, ढेरों चीज सर से जानिए, सिलेबस के बाहर निकल जाइए। एक और चीज मैं आपको बता दूंगा कि हमारी आदत है हम लोग सिलेबस के अंदर रहें। सिलेबस इतना बड़ा है और इंसानों की आदत है भूलने की। भूलेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। सिलेबस इतना है, आप इतना पढ़ के बैठिए ताकि भूलते भूलते भी कम से कम सिलेबस आपके पास रह जाए। तो सिलेबस से बाहर निकलिए, ढेर सारे केस स्टडीज करिए, कंपनियों को जानिए, इकोनॉमिक्स थ्योरी को समझिए। क्यों मनमोहन सिंह इज रिस्पेक्टेड एज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, वो एज अ पॉलिटिशियन ही वाज अ फेलियर। एक राजनीतिक के तौर पे वो असफल माने जाते हैं इंडिया के अंदर में, लेकिन इकोनॉमिस्ट के मामले में उनका कोई टक्कर नहीं है। क्यों? एक आदमी ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम रैग्स टू रिचेज। कहाँ तो खटेहाल थे और कहाँ पहुंचा दिया विजन। तो वो विजन आपके पास आने वाला है। I congratulate you once again and your teacher for giving this for number one being into this profession, and I thank you for listening to me, for being keen and intuitive to listen to me. Thank you very much. God bless you all. And Ashutosh sir, thank you very much कि आपने मुझे बुलाया। I'm very much happy to see you guys grow. God bless you all.